Very good morning, everyone. In our previous video, we have done the vital statistics. Okay, so in vital statistics, we have done the definition, its uses, and its sources. So in today's video, we will learn about the important rates and indices. Okay, so what is rate? So rate is by and large rates are calculated from the total number of events which occur in defined geographical area during a calendar year. ओके सो एक परफेक्ट एक कोई रेट है जिसको कि हम कैलकुलेट करके इसकी टोटल नंबर ऑफ इवेंट से कैलकुलेट करके और उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन और उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में जितनी भी रेट्स हुई हो, चाहे वो डेथ की हो, चाहे वो बर्थ की हो, एसेट्रा, तो उन सबको अगर मेजर करेंगे तो दैट्स व्हाट रेट इज़. ओके सो जो रेट्स है उसको हम 3 स्पेसिफिक चीज़ों से देखते हैं. फर्स्ट इज़ एनुअल रेट. ओके सो एनुअल रेट इज़ समथिंग विच वी हैव in a end of the year. Okay, so that's what annual rate means. Crude rate is something which we have the rates of mid-year population. Okay, so something that came from mid-year population, that's what crude rate is. And last, specific rate. Specific rate is specified with age, particular age and sex. Okay, so these are the things that came from specific rate. Okay, so ये 3 specific rates है, annual rate, crude rate and specific rate. So on 3 of this we have done we are going to have our rates and indices. Okay, so first is crude rate. Okay, so crude rate we have done that with something that came from mid-year population, that is crude rate. Then specific rate is something that we have population of age and sex. Okay, now what is crude rate is, so crude rate क्या है, total number of events in an area during the year upon or divided by estimated mid-year population of the same area during the same year. Okay, and इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इंटू 1000. ओके, सो अगर हम ये पॉपुलेशन या ये इक्वेशन से अगर ये सॉल्व करेंगे तो वी हैव आवर क्रूड रेट. ओके, सो क्रूड रेट हो गया. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रेट. स्पेसिफिक रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इन एन एरिया ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर एक ईयर में जितने भी इवेंट्स घटे हो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में अपॉन एस्टिमेटेड मिड ईयर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ सेम एरिया. ओके, यानी कि उसके मिड ईयर का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो मतलब वो जो पॉपुलेशन है वो मिड ईयर पॉपुलेशन हो उसी सेम एरिया का, ठीक है, और सेम ईयर का, एंड इनटू 1000. सो बाय दिस इक्वेशन वी हैव आवर स्पेसिफिक रेट. ओके, सो दीज आर द रेट्स. नाउ नेक्स्ट इज GFR. GFR is general fertility rate. Okay, so general fertility rate is what it is a measure of fertility, that crude birth rate, because the denominator is restricted to the woman in the childbearing age rather than whole population. Okay, so general fertility rate क्या है, एक जितने भी लाइव बर्थ हुए हो उस एरिया में. ओके, और मिड ईयर पॉपुलेशन का जो रिप्रोडक्टिव एज कितना होगा, 15 से 44 ईयर्स होता है. ठीक है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन में जितने भी वुमेंस आते होंगे 15 to 44 ईयर्स में सेम एरिया के सेम ईयर में. ओके, और इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव आवर GFR. ओके, सो GFR इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एरिया ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एज 15 to 44 years in a same area in same year or into 1000. So by this equation we have our GFR, which is general fertility rate. Okay, now next is general marital fertility rate. Okay, so general marital fertility rate is, it is the number of live birth per 1000 married women in a reproductive age group of 15 to 44 years in a given year. ओके, सो जो जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या है, जितने भी लाइव बर्थ हुए हो इन अ ईयर
उसको डिवाइड करते हैं हम मिड ईयर मैरिड फीमेल पॉपुलेशन से, ओके। यानी कि वो जो पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन है, ओके, एंड दैट टू इन अ एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर जनरल फर्टिलिटी रेट, ओके, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, ओके। सो नेक्स्ट इज age specific fertility rate, that is ASFR, okay. So ASFR is number of live birth in a particular age group, okay. That means our reproductive age is between 15 to 49 years. तो जितने भी live birth हुए हो in a particular age group, okay, that means here we are going to see the particular age of that population upon mid year female population of same age group, okay. यानी कि उसी ईयर के जो मिड ईयर पॉपुलेशन है, मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन है, उसने भी उसका सेम एज ग्रुप को देखना है और इनटू 1000. सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ओके. नाउ नेक्स्ट इज important vital statistics rates and indices, okay. So apart from all that we have done, ये सारे क्या है इम्पॉर्टेंट रेट्स हैं जिसको कि जानना ज़रूरी है. सो द कॉमन वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट्स एंड इंडाइसेस विच आर यूज्ड इन कम्युनिटी हेल्थ केयर डिस्कस्ड बिलो. सो फर्स्ट इज बर्थ रेट, ओके, बर्थ रेट. नेक्स्ट इज डेथ रेट, देन स्पेसिफिक डेथ रेट, देन IMR which is infant mortality rate, okay. Now next is neonatal mortality rate, okay. Next neonatal mortality rate, that means the death rate which has just happened in first 28 days of life, okay. So perinatal rate is next, then under 5 mortality rate, then maternal mortality rate, expectation of life and gender fertility rate, okay. So next is birth rate, okay. The birth rate क्या है? Birth rate is defined as the number of live births during a year per 1000 estimated mid-year population in a given formula, okay. So birth rate क्या है कि जो जितने भी लाइव बर्थ हुए हो उस पर्टिकुलर ईयर में उसको एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, ओके, ऑन पर 1000 बर्थ्स, ओके. सो बाय डूइंग दैट वी हैव आवर बर्थ रेट. सो बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर अपॉन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, ओके, और इनटू 1000. सो दिस इज आवर बर्थ रेट. एंड for year of 2006 the birth rate in India is about 24 per 1000 population, okay. So एक ईयर दिया है, एक रिसर्च दिया है जिसको कि 2006 में किया गया था कि जो बर्थ रेट है इंडिया में वो था 24 लाइव बर्थ ऑन पर 1000 पॉपुलेशन, ओके. सो इन द डेवलप्ड कंट्रीज द बर्थ रेट इज़ लेस देन 15. तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो लेस देन 15 है. सो जो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया उस टाइम में प्रोग्राम में, वो इस एम को लेकर के चल रहा था कि जितने भी बर्थ रेट है उसको टू रिड्यूस द बर्थ रेट एटलीस्ट 21 बाय 2010, ओके. सो 2010 आने तक जो बर्थ रेट है उसको एटलीस्ट 21 पे लाया जाए, ओके. एंड बाय 2009 में स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमें पता चला कि जो बर्थ रेट है इंडिया में वो कितना है, 22.22 बर्थ है ऑन पर 1000 पॉपुलेशन, ओके. सो दिस इज बर्थ रेट. नाउ नेक्स्ट इज डेथ रेट. Death rate is exactly something which we have done in birth rate. I mean it is related to formula, okay. So death rate is defined as number of deaths per 1000 estimated mid-year population in 1 year. यानी कि death rate क्या है? जितने भी deaths हुए हो during 1 year उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, ओके. यानी कि मिड ईयर पॉपुलेशन में जितना भी रहा होगा उससे डिवाइड करना है और इनटू 1000. सो बाय डूइंग दैट इक्वेशन वी हैव आवर डेथ रेट. सो डेथ रेट क्या है? फॉर ईयर 2006 द डेथ रेट इज़ इंडिया अबाउट 7.5 पर 1000 पॉपुलेशन, ओके. सो 2006 में स्टडी किया गया था
कि जो इंडिया में डेथ रेट है वो 7.5 पर 1000 पॉपुलेशन है, एंड इन USA एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज द डेथ रेट इज़ लेस देन 9. ओके, सो एट प्रेजेंट देयर आर 6.4 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि अभी की स्टडी के अकॉर्डिंगली अभी 6.4 डेथ रेट है इंडिया में. ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डेथ रेट. स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है? द डेथ रेट ड्यू टू स्पेसिफिक कॉजेज, एग्जाम्पल कॉलरा, यानी कि स्पेसिफिकली किसी कंडीशन की वजह से डेथ हुआ हो, किसी भी डिजीज़ की वजह से डेथ हुआ हो, दैट मीन्स दैट केम फ्रॉम स्पेसिफिक डेथ रेट. सो इन स्पेसिफिक ग्रुप्स, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, social class, specific period, annual week, monthly, or are called specific death rate. Okay, so something that shows the specificity of the particular condition, उसको हम specific बोलते हैं. Okay, specific death rate बोलेंगे. So ये सारी जो conditions हैं ये सारी जो कंडीशंस है वो किस में आएंगी? कोई स्पेसिफिसिटी ऑफ डेथ रेट में आएंगी. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक डेथ रेट्स आर बिलो. यानी कि अगर हमें स्पेसिफिक डेथ रेट ड्यू टू कॉलेरा निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम कॉलेरा ड्यूरिंग द ईयर अपॉन एस्टिमेटेड मीडियम पॉपुलेशन इंटू 1000 करेंगे. ओके, यानी कि अगर कॉलेरा के डेथ रेट की कंडीशन को देख रहे हैं तो हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी डेथ हुए होंगे कॉलेरा की वजह से, उसको हमें डिवाइड करना है उसी ईयर के मिड ईयर पॉपुलेशन को. ओके, यानी कि एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन देखना है और इसको इंटू करना है इंटू 1000. ओके, सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर स्पेसिफिक डेथ रेट ड्यू टू कॉलेरा. ओके, और इसी तरीके से अगर हमें देखना है कि स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ मेल्स कितना है. ओके, सो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डेथ अमंग मेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितने मेल्स की डेथ हुई है उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000. ओके, सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर स्पेसिफिक डेथ रेट. नाउ डेथ रेट इन 2001, यानी कि पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक ईयर में कितने डेथ्स हुए हैं ये जानना है हमें. तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डेथ इन 2001, यानी कि जितनी भी डेथ्स हुई हो इन 2001 उसको डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से. ओके, यानी कि उसी ईयर में कितने मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी इंटू 1000. ओके, सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर डेथ रेट इन 2001. ओके, नाउ नेक्स्ट इज infant mortality rate, that is IMR. ओके, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज. ओके, यानी कि पर्टिकुलर ईयर में कितनी डेथ्स हो चुकी हैं इन्फेंट्स की इन पर्टिकुलर 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1 साल के अंदर कितनी डेथ हुई है ऑन पर 1000 लाइव बर्थ इन ईयर. ओके, यानी कि जितनी भी डेथ हुई है पर 1000 लाइव बर्थ इन 1 ईयर. So it is given in formula like IMR is number of death under 1 year of age, okay, and total live birth in year और into 1000. तो जितनी भी डेथ्स हुई होंगी 1 ईयर एज ग्रुप के इन्फेंट का अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन ईयर, यानी कि सेम ईयर में ही कितनी और लाइव बर्थ्स हुई थी into 1000. So by doing this equation we have our IMR rate. Okay, so in 2006 IMR in India was 57 per live birth. Okay, यानी कि जो 57 जो IMR था वो था in 2006 on every 1000 live birth, and developed countries में ये क्या था? It is about 5. ओके, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे था. एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ रिगार्डिंग इट एज मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ आवर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी. यानी कि अगर कंपेयर किया जाए कि इंडिया में इन 2006 जो IMR रेट था वो 57 था, मच मोर हायर देन एनीथिंग एल्स. ओके, एंड बाकी यही एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिर्फ 5 था. ओके, सो ये क्या है? एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन था फॉर द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी. ओके, सो इसको देखते हुए बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाया गया टू कंट्रोल दी IMR विच इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज neonatal mortality rate. Okay, so neonates is the age
which came 28 days of birth. Okay, so deaths occurring within 4 weeks or 28 days of birth are called neonatal death. Okay, यानी कि जो 28 डेज ऑफ बर्थ होता है या फिर 4 वीक ऑफ बर्थ होता है उसको हम नियोनेटल क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं. सो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ अंडर 28 डेज ऑफ एज अपॉन टोटल लाइफ बर्थ इनटू 1000. ओके, सो जितनी भी डेथ हुई होंगी 28 डेज़ के अंदर, ओके 28 डेज ऑफ एज के अंदर अपॉन टोटल लाइफ बर्थ इनटू 1000. ओके, सो दिस इज़ नियोनेटल मोर्टालिटी रेट. सो अभी क्या देखेंगे हम कि जो इम्पोर्टेंस क्या है मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इतनी क्यों है वो हम देखेंगे. ओके, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इज़ बिकॉज द टोटल infant deaths nearly 50% occur during first 4 weeks and the cause of infant mortality rate. Okay, so first 4 weeks के अंदर जो न्यूनेट्स का डेथ होता है वो बहुत ज़्यादा वो अराउंड 50% चांसेस होता है. ओके, सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है फॉर नियोनेट. ओके, सो क्या क्या कॉज हो सकता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का. फर्स्ट हो सकता है प्री मैच्योरिटी. ओके, यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी हुई हो तो, या फिर बर्थ इंजरीज एंड एस्फिक्सिया. ओके, तो ये एक कंडीशन हो सकता है. नेक्स्ट इज न्यूनेटल इन्फेक्शन ऑफ डायरिया एंड ब्रोंकोपनिया. ओके, next is congenital abnormalities, that means by birth maybe the baby have the congenital abnormalities या फिर कि कोई भी abnormality हो सकती है. Okay, last is hemorrhagic disease in India. In India the neonatal mortality rate is about 37 in year of 2003. Okay, so on 2003 indices the infant mortality rate was 37%. Okay, that was because of hemorrhagic disease. Next is perinatal mortality rate. Okay, so perinatal mortality rate क्या है, it is the mortality of infant occurring during period of 28 weeks of pregnancy. ओके, यानी कि जो पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट क्या है, वो सारी प्रेगनेंसीज जो कि 28 वीक्स के अंडर आती हैं. ओके, एंड आफ्टर बर्थ पर 1000 टोटल बर्थ, इन अदर वर्ड इट इंक्लूड्स स्टिल बर्थ प्लस डेथ अंडर 1 वीक. ओके, सो जो पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट है वो क्या है कि जो जितनी भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है 28 वीक के अंदर, ओके, उन सब की sorry, in other word it includes stillbirth and death under 1 week. Okay, so perinatal mortality rate है वो क्या है, जितने भी लेट फीटल डेथ है. ओके, लेट फीटल डेथ यानी कि जितनी भी डेथ्स हैं वो 28 वीक्स या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब मोर, वो लेट फीटल डेथ प्लस जितनी भी डेथ अंडर 1 वीक हुई हो, ठीक है, 1 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हुई हो, उसको डिवाइड करना है टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ बोथ. ओके, यानी कि जितने भी लाइव बर्थ हुए होंगे प्लस जितनी भी स्टिल बर्थ हुए होंगे, ठीक है, उससे डिवाइड करना है और इनटू 1000. ओके, सो हियर 1000 इज मिसिंग इनटू 1000. ओके, सो क्या करना है यहाँ पे इनटू हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट. नेक्स्ट इज under 5 mortality rate. So in the annual number of death of children age under 5 years expressed as rate per 1000 live births, and the rate is calculated in formula. Okay, so under 5 mortality rate क्या है, जो कि एज ग्रुप ऑफ 5 में आता है, ठीक है, यानी कि लेस देन 5 years ऑफ एज, जितनी भी रेट्स पर मतलब जितने भी 5 years ऑफ एज चिल्ड्रेन हैं उनको पर 1000 लाइव बर्थ से डिनोफाई करते हैं. ओके, डिनोट करते हैं. देन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्या है, जितनी भी नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज इन अ गिवन ईयर, यानी कि पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी डेथ हुई होगी अंडर 5 year ऑफ चिल्ड्रन का अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन सेम ईयर, यानी कि उसी साल में जितने भी लाइव बर्थ हुए होंगे वो रेट इनटू 1000. ओके, सो इन दिस वे वी हैव आवर अंडर 5 मोर्टालिटी रेट. Okay, so for 2006 the under 5 mortality rate in India was 76 per 1000 life.
ओके, तो जितने भी मतलब कि अंडर 5 मोर्टालिटी रेट थी वो कितना थी, 76% थी इंडिया में, एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ लेस देन 6. ओके, द नेक्स्ट इज MMR, विच इज़ मैटरनल मोर्टालिटी रेट. सो मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम परप्यूरियल कॉजेज पर 1000 लाइव बर्थ. ओके, जितनी भी डेथ होती थी ऑन पॉपुलर केसेस इंटू 1000 लाइव बर्थ. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ डेथ डायरेक्टली ड्यू टू प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड. ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशंस को देखना है, और एंड अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद इन 42 days ऑफ डिलीवरीज. ओके, यानी कि तीनों कंडीशन को देखना है कि अगर प्रेग्नेंट है मदर, या फिर जो चाइल्ड बर्थ के टाइम में, या फिर विद इन 52 days ऑफ डिलीवरी इनटू इसको डिवाइड करना है टोटल लाइव बर्थ्स इन ईयर, यानी कि सेम ईयर में ही कितने लाइव बर्थ रहे हैं, और इनटू 1000. ओके, सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर MMR. सो MMR क्या है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट. इंडिया में रिपोर्ट किया गया कि जो MMR है वो कितना है, 3.01 पर लाइव बर्ड्स. ओके, तो MMR का रेट इतना है, एंड इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ लेस देन 0.5. द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज़ टॉक्सिमियाज ऑफ प्रेगनेंसीज, अनीमिया, हैमरेज एंड सेप्सिस. ओके, तो ये 4 कंडीशंस है जो कि बहुत ज़्यादा देखी जाती थी इन MMR. ओके, now next is general fertility rate. So general fertility rate क्या है, this is defined as number of live birth during a year per 1000 women in reproductive age group of 15 to 45 years. ओके, यानी कि हम एज ग्रुप देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज की. ओके, विच इज़ 15 to 45 years. तो फॉर्मूला ये बनता है कि जनरल फर्टिलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 years. ओके, यानी कि जितने भी लाइव बर्थ हुए होंगे उसको डिवाइड करना है, जितनी भी फीमेल्स है रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स है 15 to 45 years की. ओके, और इसको करना है 1000 से मल्टीप्लाई. सो बाय डूइंग दिस वी हैव आवर जनरल फर्टिलिटी रेट. ओके, नाउ हियर इज सम रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स. ओके, उसके लेवल पे, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सेंट्रल लेवल है, उस पर कैसे होता है वो देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स में सेंट्रल है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे कैसे होता है रजिस्ट्रेशन. सो जो अगर बर्थ का और डेथ का रजिस्ट्रेशन है तो वो क्या होता है, वो किसके अंडर आता है, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया. ओके, और जो पर्सन इंचार्ज होता है उसका वो कौन होता है, रजिस्ट्रार जनरल. ओके, स्टेट लेवल पे इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. ओके, और इसका जो पर्सन ऑफ इंचार्ज है वो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DHO एंड डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर. ओके, ना तहसील या फिर ब्लॉक टाउन है, ब्लॉक है या टाउन है, तो उसमें क्या होगा, रजिस्ट्रार होगा. एंड रूरल एरिया में क्या है, कोई भी पंचायत है, रेवेन्यू है, पुलिस है या फिर हेल्थ ऑफिसर्स है, तो उनके वो इंचार्ज होते हैं तहसील या फिर ब्लॉक लेवल पे. ओके, लास्ट विलेज एंड इंस्टीट्यूशन पे जो सब रजिस्ट्रार होते हैं. ओके, तो रजिस्ट्रेशन उधर होता है सब रजिस्ट्रार के पास में. एंड इसमें जो पर्सन इंचार्ज होते हैं वो कोई भी विलेज चौकीदार हो सकता है, या फिर स्कूल टीचर, या फिर हॉस्पिटल एंड या फिर मैटरनिटी होम. ओके, सो ये सारे कौन है, इसके इंचार्ज हैं. ओके, नेक्स्ट इज okay, so here we finished our rates and indices. Thank you.